having potential is not the same as doing something with it. So, our goal with this online session is to introduce you to the person and her ideas that will help you actually to execute on your dreams. All right, our today's guest is one of the greatest thinkers of our generation. The systematic and practical nature of her thinking is so powerful that makes her a soft skill trainer, a freelancer, a YouTuber, and a woman with an attractive and dynamic personality. She is the daughter of Udhampur. She did her early education from Army Public School, Udhampur, went to Chandigarh to pursue engineering. Nevertheless, she worked as a consultant in Western Consultancy Company, Gurgaon. After working for around 10 years in corporate, she decided to become a freelancer, soft skill trainer, and is presently working at Gurgaon as a freelancer. So, let's give a huge round of applause to none other than Mrs. Avni Kyalu. Welcome, ma'am. Yay! Thank you so much, Rohini. It's so sweet. Your introduction really touched me, and it is so nice to meet all of you today. And there's one thing that I carry with myself wherever that I go, and that is I am the daughter of Udhampur. I carry Udhampur with myself everywhere that I go. In every interview, I've told people that I am from Udhampur. I'm from the beautiful city of Udhampur, and today it is a feeling of pride for me to interact with all these Udhampur ka bachas, all these young bright minds. And trust me when I say this, I cannot wait for the day when I'll meet any one of you in the main ground. I would be so happy if one day any one of you would come and tell me, ma'am, आपने हमें उधमपुर में session दिया था. I am from Udhampur and I am making a name for myself. And coming from a school which is as prestigious as National Academy High School, trust me, you guys, half of the work is done. The school that you are from is so prestigious. आप लोगों को इतना अच्छा education मिल रहा है. The platform that you have from National Academy High School is one of the best platforms that is available in Udhampur. Rather the whole state, I would say. So thank you so much for the warm welcome, and I am looking forward to today's interaction. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग interact करोगे मेरे से, आप लोग questions पूछोगे, तो उससे मजा भी आएगा, आप लोग भी सीखोगे और मैं भी सीखूंगी. Okay? So shall we start off? If Rohini ma'am, if everybody is there, can we just start off with this session? Yes, ma'am, of course, of course. Thank you so much. Thank you so much. ठीक है. सबसे पहले before I start, I want to ask one thing. आप बच्चों का, which is the biggest fear? What is the one thing that scares you the most? It can be ghosts, lizards. Lizards is my biggest fear. आप लोगों का क्या है? You guys can unmute yourself when you want to speak, and afterwards we can all mute. Anyone? Ghost. Ghost. अच्छा अकुल. Ghost. ये अकुल. अच्छा ghost. इतने सब लोग ghost से डरते. All. What other fears are there? Ma'am, lizard. Darkness. Crocodile. Sorry, or? अच्छा crocodile. Oh God. And anyone else? Cockroach. Cockroach. Cockroach से भी डरते हैं. Yes, miss. अच्छा चलो. Yes. Snake. Andhera. Very good. Thundering thunder. चलो ठीक है. Darkness. Lightning. Lightning. ओहो. देखो ये सारे fears तो ना हम धीरे धीरे सीखेंगे. You know, जैसे जैसे we grow up, we learn how to tackle these fears. Fear of audience. Okay. So Krishna is saying fear of audience. Okay. Anybody else? किसी और को है fear of audience? No, miss. No. अच्छा, so Yes. I think अच्छा, okay. चलो, I'll tell you one very interesting fact. कुछ साल पहले researchers ने एक research करी in which they went around town asking people which was the one thing that scared them the most.
जिसको देखते सोचते they would start sweating, बिल्कुल डर जाएंगे, ऐसे जम जाएंगे, which was one thing that scared them the most. And guess what people said? People said it is the fear of public speaking, fear of audience. लोग इतना डरते हैं public speaking से that they ranked the fear of public speaking higher than the fear of death. लोगों को मरना मंजूर था, but उनको लोगों के सामने जाके बोलना बिल्कुल मंजूर नहीं था. They were so scared. Imagine उसमें fear of lizards भी है, fear of darkness है, fear of thundering है, but फिर भी the one fear that was the most powerful was the fear of public speaking. उसे कहते हैं glossophobia. Glossophobia is the fear of public speaking or fear of standing in front of people and speaking. अब public speaking क्या है? Can any of you define क्या है public speaking? अगर मैं आप लोगों को बोलूं आज एक public speaking का सेशन है, क्या होता है public speaking? Anyone? लोगों के आगे बोलना, कुछ बोलना, conversation. Okay, so a lot of you are saying लोगों के सामने बोलना. अब अगर मैं इसे break down करूं, if I break down public speaking into two parts, उसमें ना दो बातें मुझे समझ में आ रही हैं. एक है public, एक है speaking. अब fear public का है या speaking का है, this is something we have to see. You think किसी को speaking का fear हो सकता है? Can you have the fear of speaking? हम लोग बचपन से we have started speaking since we were I think 1.5 years old. तब से we have been chit chatting. We chit chat with our friends. We have conversations with our parents. डिनर टेबल पे बैठ के बातें कर रहे हैं, लंच पे बैठ के बातें कर रहे हैं, फ्रेंड्स से कॉल कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं. डू यू थिंक वी हैव द फियर ऑफ स्पीकिंग? नहीं ना. तो और पब्लिक के सामने भी हम जाते हैं, वी मीट अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स, बट द फियर इज ऑफ पब्लिक. एंड हाउ, और हमें जो डर है वो पता है क्या है? हमें ये डर नहीं है कि पब्लिक के सामने खड़े कैसे होंगे, हमें डर ये है यार मैंने जो बोला कहीं पब्लिक मुझे बेवकूफ ना समझ ले, है ना? यस. कहीं पब्लिक क्या सोच रही है मेरे बारे में. हमें पब्लिक के सामने, अगर मैं आज आपको बोलूं कि लॉकडाउन खुल गया है, जाओ आप लोग जाके एक चक्कर काट कर आओ, आप में से कितने होंगे जो घर पे बैठेंगे? सब बाहर निकलेंगे, पब्लिक में तो सारे जाएंगे. तो डर किस चीज का है? वो ये है that how will people judge us? What if मैं वहां ऐसे freeze हो जाऊं? If I'm asked to speak in front of 100 people and if I freeze, what will people say? What if my mind goes blank? What will people say? है ना? So that is the fear. हमें fear speaking का नहीं है, हमें fear public का भी नहीं है. हमें fear ये है what will the public say if I fail? Yes. Remember this term, if I fail. So before going for my public speaking assignment, I'm already thinking what if I fail? लेकिन if I go in front of people thinking what if I excel? अब सोचो. Now you think like that. Before any assignment आप ये सोचो यार अगर मेरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही सेशन गया, तो what will public do? They will clap for me. They will say यार बहुत बढ़िया बोला, हम तो वेट नहीं कर सकते, आप इतना अच्छा बोलते हो, है ना? Yes. So ये ना transition is very important. I'll tell you my story. The first time I spoke in front of public, I was in class 6th, and my teacher had given me a sheet of paper on which some news item was written. वो class में we read news items ना? So I read that in front of the whole assembly, and I froze. Imagine I could not read from a sheet of paper. I froze. मेरे हाथ कांप रहे थे. I was sweating
and I was breathlessness on the mic. Imagine in front of the whole assembly, I was panting. And हुआ क्या? मुझे किसी ने आगे कुछ नहीं बोला, but I thought, यार मैंने तो अपना उल्लू बना लिया. People would be making a fun of myself. What will I do? And 6th class के बाद I didn't speak till I reached my class 11th. And class 11th में when I had to speak, it was because a teacher forced me to speak. And उस दिन जब मैंने बोला, I thought one thing, कि हमेशा ये सोचना कि what if I fail, उससे better है I start thinking what if I excel. And I started imagining कि audience is clapping for me, audience बैठी है मुझे सुनने के लिए. You know, I'll tell you one secret. और वो ये है कि people want you to excel. आपके all the listeners, whenever you people participate in debate, declamations, extempo, poem recitation, there's one thing, and that is the listeners want you to excel. ये हमेशा होता है. लोग चाहते हैं आप excel करो. It is you and your mentality जो आपको रोकती है. Okay? The other secret is public speaking is a skill जो कोई भी लर्न कर सकता है. आप में से कई लोग साइकिलिस्ट होंगे, कोई स्विमर होगा, कोई सिंगर. आप लोगों में से सिंगर है कोई या डांसर? Yes, ma'am, I am. अच्छा, प्रतुल, it was Pratul, right? Yes, So Pratul, are you a singer or a dancer? I am a dancer. Wow, very good. And Pratul, आपने कब से डांस करना स्टार्ट किया? When mostly 2 or 3 years. When you were 2 or 3 years old, तब से you've been dancing. Yes, yes. Okay. So Pratul, आपने डांस कहाँ से सीखा? टीवी देखते होगे, किसी को डांस करते हुए देखा होगा, सीखा? Always TV, because the hook steps that Salman can do when the movies, I so love it. So yeah, of course, dance is my best. Wow, very nice. And अभी किसी ने मुझे बताया वो सिंगर भी है. तो आप लोगों ने डांसिंग और सिंगिंग भी तो सीखा है ना? So I'll tell you the other secret, that is public speaking भी जो है ना, that is a skill. Just like dancing and singing are skills, public speaking is also a skill that you can learn. उसमें techniques है, उसमें practicals है, उसमें theories है. आप वो सीखोगे ना, anyone can become a public speaker. Public speaker कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैदा public speaker हुआ. There's nobody who's a born public speaker. अच्छा, you tell me one thing. आप लोगों की नजर में who is there जो बहुत अच्छे से बोल सकता है in public? Give me any example जो आपके दिमाग में आता है. Anyone who can speak very well in public? PM Modi, okay. And anyone else? It can be आपकी principal ma'am. Yes. Anyone else? Yes, अच्छा, ma'am. anyone else? Miss है ना? Anukampa, ma'am. Anukampa ma'am, very good. और Miss आप You too. You अच्छा too. मैम, थैंक यू सो मच. और बताओ, एनीवन एल्स? और कोई पर्सनालिटी बताओ जो आपको लगता है दे कैन स्पीक वेरी वेल इन पब्लिक. एक तो पीएम मोदी था. अच्छा, पॉलिटिशियंस. हाँ, पॉलिटिशियंस कैन स्पीक वेरी वेल इन पब्लिक. चलो, आई टेल यू वन सीक्रेट. सेलिब्रिटीज कैन स्पीक वेरी वेल इन पब्लिक. आपने जितने नाम लिए ना, इंक्लूडिंग मी एंड अनुकंपा मैम, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, इन सबको पता है सिखाया जाता है. दे टेक क्लासेस इन पब्लिक स्पीकिंग, दे हैव सेशंस इन पब्लिक स्पीकिंग. आपको पता है पीएम मोदी जो है आर रियल हीरोज, इंडियन आर्मी. अभी किसी ने लिखा, हर किसी को दे आर ट्रेन्ड टू बी पब्लिक स्पीकर्स. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग क्या बोलते हैं, यार ये तो पैदा ही बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हुआ है ना. A lot of times when people do so well in public speaking or who are so talented, for example even singers, हम कहते हैं ना यार ये तो पैदा ही बहुत अच्छी आवाज से हुआ है ना. A lot of times we say
that यार ये तो he's a born genius, he's a born public speaker, she's a born singer, news anchor, she's a born dancer. News anchor क्यों अच्छा है? Because she's a born news anchor. So I'll tell you one thing, ये myth है. The only thing that are born in this world are babies. कोई भी public speaker, singer या dancer नहीं होता है पैदा होने से. ये सब सीखे जाते हैं skills. So public speaking, just like dancing, singing, being a scientist, being a doctor, ये सब चीजें सीखी जाती हैं. That way public speaking can also be learned. You just need to know the right technique, the right skill and the right timing. So it is a skill. अच्छा, आपको पता है अच्छा कभी आप सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली किसको पसंद है? मिस मेरे को और अच्छा ओके. और लड़कियों, और मेरे को विराट कोहली सचिन तेंदुलकर में लड़कों से आंसर्स मिल रहे हैं. लड़कियों को क्या पसंद है? कौन ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत पसंद है? धोनी या मिस धोनी. अच्छा, दीपिका पादुकोण कितनों को पसंद है? नो मिस. नहीं पसंद. No. अच्छा डांसर्स कौन पसंद है या सिंगर्स कौन अच्छे वाले पसंद है? मिस मेरे को डांस. नेहा कक्कर. अच्छा, नेहा कक्कर, टोनी कक्कर, सुशांत सिंह राजपूत, मैम, आतिफ टेरेंस. असलम, जस्टिन बीबर, टेरेंस लुइस. ओके. अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताओ, विल यू एवर गो टू जस्टिन बीबर, नेहा कक्कर, विराट कोहली, MS धोनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड टेल देम दैट यू आर अ बॉर्न सिंगर, यू आर अ बॉर्न डांसर? आप लोग बोलोगे ना जाके? Yes, ma'am. है ना? But you know what happened? Some years back, Sachin Tendulkar सबको पता है. Sachin Tendulkar said in one of his interviews that when people come up to him and say that, sir, you're a born cricketer, he feels disrespected, he feels insulted. Because जब आप बोलते हो you're a born dancer, you're a born singer, आप या you're a born cricketer, आप उसके इतने सालों का डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फोकस, पेशेंस, परसिस्टेंस, आपने सब धो डाला और बोला नहीं यार बिकॉज तुम पैदा ही ऐसे हुए थे. So nobody is a born singer or a born dancer. कोई पैदा होते से नहीं होता है. It is the passion, the dedication, the technique that makes you a good singer or a dancer, and that will make you a good public speaker. So just like आप singing और dancing सीख सकते हो, आप वैसे ही public speaking भी सीख सकते हो. So it is a learnable skill जिसको आप daily practice करोगे, so it will become a habit. Okay? Understood? So इसलिए Yes. कभी डरो Yes, मत. yes. कभी ये if somebody is doing very well in public speaking, आपकी किसी friend का debate competition बहुत अच्छा हुआ है, या किसी का कोई जनरली आपको लगता है a very good public speaker, never tell them that you are a born speaker या you are a born singer, because आपने उसके इतने सालों का मेहनत खत्म कर दिया. People practice really hard to be good at this. ठीक है? चलो, I'll start off with a very basic thing. Public speaking के ना 2 parts होते हैं. There are only 2 techniques when it comes to public speaking. One is the content, the other is the delivery. Content क्या होता है? What the public wants to hear, what I want to share with the public. So एक part होता है content सही करना. Even जैसे आपकी रोहिणी मैम ने मेरी इंट्रोडक्शन में बोला, I have a YouTube channel, I am a content creator, I have an Instagram page. In fact, मेरे सोशल मीडिया के अलावा I create content for companies for their training program. तो content क्या होता है? Is something that I want to share with the world, या what the world wants to know. I share a lot of tips on interview. कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन कैसी की जाए, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई वांट पीपल टू नो, एंड दैट इज समथिंग जो लोग मुझे बोलते हैं दे वांट टू नो. सो द फर्स्ट पार्ट इज कंटेंट.
जो अब मैं आपको टिप्स बताऊंगी, यू कैन यूज देम इन योर पब्लिक स्पीकिंग, यू कैन इवन यूज देम व्हेन इट कम्स टू एन essay writing, an article writing, any writing competition as well, even in your exams. ठीक है? So content में the first thing is always research your content. आप लोग रिसर्च करने के लिए कहाँ से करते हो? Anyone? Google. Chrome. Okay. Google Lens. हाँ, so a lot of research can be done through Google. आप लोग Google पे, let us suppose मैं आपको बोलती हूँ, you have to write an essay on drug addiction या water pollution या air pollution or COVID. आप क्या जाओगे? You'll go on Google, you'll type, you'll do your research. So always do your research very well. चाहे वो आप Google से कर रहे हो, then there's a website called Quora, Quora. Quora पे बहुत अच्छे रिसर्च हो सकता है. Then ऑनलाइन पेपर्स होते हैं जो लोगों ने पब्लिश किए होते हैं, फ्रॉम वेयर यू कैन डू योर रिसर्च ऑन एनीथिंग. आपको कुछ साइंस में, इंग्लिश, एसएसटी में समझ नहीं आ रहा, गो टू गूगल, वहां पे बहुत सारे लिंक्स होते हैं. यू डू योर रिसर्च. So whenever you are asked to speak on any topic in public speaking, always do your research very well. Okay? The second thing is, when you are doing your research, आप उससे ना, you write down whatever you find on small sheets and then you collate everything और उसका एक outline बनाओ. Let us suppose you've been asked to give a talk on water pollution in Udhampur. ठीक है? तो आप क्या करोगे? You will start by researching what are the various water sources in Udhampur. आप उसके बाद उसको रिसर्च को एक जगह पे अपना लिखना स्टार्ट करोगे, आपको क्या क्या डेटा मिल रहा है. उसके बाद comes outline preparation. अब एक स्टैंडर्ड क्या होता है? I'll tell you one technique. अगर आप लोगों के पास अपना नोटबुक है, कॉपी है, you just write it down. Okay? So the technique, ध्यान से सुनना इस टाइम पर. The technique is 3T. T. Okay? 3T क्या होता है? The first T is where you tell the people what you are going to tell them. जहां आप लोगों को ये बताते हो कि आप उनको क्या बताने वाले हो. आप लोगों को ध्यान होगा, when I started off आज का सेशन, या जब आपकी रोहिणी मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने क्या बोला कि, और मैंने भी बोला कि मैं आप लोगों को पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताऊंगी, है ना? So I started off by telling you मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ. वो था पब्लिक स्पीकिंग. So आपका पहला T होता है where you tell the people what you are going to tell them. दूसरी भाषा में अगर आपको यही ऐसे में लिखना हो तो आप पहले T को बोलते हो इंट्रोडक्शन, wherein you introduce the topic to the people. जब आप डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाते हो, आप सबसे पहले बताते हो ना कि आपका स्टैंड क्या है. Where is it that you stand? You stand for the topic or against the topic. So that is the first T, which is an introduction. The second T is where you tell the people. जहाँ पे आप उनको information देते हो. जब आप ऐसे लिख रहे हो तो जिसको body कहते हैं. ठीक है? The last T is where you give them a recap, where you tell people what you have already told them. So that's a recap, जिसको आप ऐसे राइटिंग में कंक्लूजन कहते हो. So जो 3T का प्रिंसिपल है, that is a golden principle that is used across all platforms. वो चाहे आपको आर्टिकल लिखना हो, चाहे आपको कोई ऐसे लिखना हो, if you have been called for a debate competition, या आपको पब्लिक स्पीकिंग किसी भी लेवल पे जाके करना हो, 3T is a golden rule. अब सबसे बड़ी, अच्छा, हम सबसे पहले इसमें करेंगे हाउ टू राइट अ बॉडी, कि आपका जो स्पीच है, हाउ टू राइट द बॉडी फॉर दैट स्पीच. इफ आपको बोला जाए, जैसे हमने जो टॉपिक लिया वाटर पोल्यूशन, लेट अस सपोज यमुना का वाटर पोल्यूशन पे हमें कुछ बोलना है, तो बॉडी में क्या होगा? हम बताएंगे सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स कि कितना % पोल्यूटेड है,
कितना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर मिलता है. देन यू टेल क्या कॉज है, किसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है. देन यू टेल इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, दैट पीपल आर सफरिंग. देन यू टेल द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट और द ह्यूमन हेल्थ. ये जो आपके 4 पॉइंटर्स है ना, ये आपके हर ऐसे में काम आते हैं. बी इट ऑन वाटर पोल्यूशन, बी इट ऑन ड्रग एडिक्शन, बी इट ऑन कोविड. कोई है जो इससे अलग सोचता है? एनीवन? चलो मैं आपको बताती हूँ. लेट अस सपोज हम यमुना वाटर पोल्यूशन का कर रहे हैं. सबसे पहले आई टेल द स्टेटिस्टिक. जो आपने रिसर्च करा होगा उसमें स्टेटिस्टिक आएगा. आई टेल द स्टेटिस्टिक कि कितने % ऑफ यमुना इज पोल्यूटेड. So I can say 9 out of 10 parts of Yamuna water has been found to be polluted. उसके बाद I'll tell the causes. The causes are the industries around Yamuna. अगर उधमपुर की बात करनी हो तो causes क्या हो जाएंगी? The factories around द्वारका. Okay, देवका, sorry. Then the third thing would be the solution. कि क्या गवर्नमेंट ने solution निकाला है to combat the pollution. फिर उसके बाद आई टेल द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या ह्यूमन इम्पैक्ट. तो आपका कुछ भी स्पीकिंग असाइनमेंट होता है ना, आप उसका बॉडी को, लेट अस सपोज आप किसी डिबेट कंपटीशन में जा रहे हो, आप उसको ना इन 4-5 पॉइंट्स में यू कैन डिवाइड प्रैक्टिकली एनी टॉपिक. लेट अस सपोज यू हैव बीन आस्क्ड टू स्पीक ऑन कोविड. कोरोना वायरस है ना अभी. इफ यू बीन आस्क्ड टू स्पीक ऑन कोविड, आप बताओ उसमें क्या स्टेटिस्टिक है. स्टेटिस्टिक मतलब क्या नंबर है, कितने % लोग इन्फेक्टेड हैं या कितने केसेस आते हैं डेली. एवरी डे हम न्यूज में सुनते हैं ना, आज 4 लाख केस आ गए, आज 5 लाख केस आ गए. वो स्टेटिस्टिक होता है. देन कम्स कॉजेज. क्या कॉज है उसका? तो आप बोलोगे इसका कॉज ये है, लोग लॉकडाउन नहीं मान रहे थे, पीपल वर नॉट वेयरिंग देयर मास्क, हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं था. देन यू विल टेल द सोल्यूशन कि सोल्यूशन ये है, अब वैक्सीनेशन आ गया है, अब लॉकडाउन आ गया है, अब दवाइयां आ गई हैं. देन यू विल टेल द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट या ह्यूमन. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू कम अप विद द बॉडी ऑफ एनी स्पीच दैट यू हैव टू स्पीक ऑन, एनी टॉपिक दैट यू हैव टू स्पीक ऑन. ठीक है. आर यू क्लियर? किसी को बॉडी में कुछ और क्वेश्चन पूछने तो आराम से पूछ सकता है. एनी क्वेश्चन. देखो यार, पूछ लो, नहीं तो मैं खुद से नाम कॉल आउट करके पूछूंगी. एनी क्वेश्चन? क्या नाम है? हाँ जी. YouTube चैनल का क्या नाम है? मेरे YouTube चैनल का नाम है स्किल अप विद अवनी. मेरे वो YouTube का भी. हाँ जी. मिस आपका इंस्टाग्राम पे क्या है नाम? स्किल अप विद अवनी. मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ मेरा क्या नाम है. जो चैट विंडो होगी उसमें एंड में आई राइट इट डाउन कि क्या है. मैम मैंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है. वेरी स्वीट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अच्छा, तो बॉडी में तो फिलहाल कोई इशू नहीं है ना? समझ में आ गया हाउ टू राइट दी बॉडी ऑफ एनी स्पीच? यस मिस. ठीक है. परफेक्ट. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लोगों को. हाँ जी. हाँ जी बोलो. मिस मैंने भी कर दी सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. आप लोग पहले सुन लो फिर सब. मिस मेरा भी है. ओके चलो लेट्स पहले जल्दी जल्दी सेशन खत्म कर लेते हैं, देन वील टॉक. ठीक है. अब द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू राइट. अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ. जब भी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन लिखना होता है ना, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन दे सकते हैं. इफ यू हैव टू, आप लोगों ने एक ध्यान दिया व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ टुडे सेशन, मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया, दैट 75% ऑफ द पीपल टोल्ड दैट देयर बिगेस्ट फियर वाज द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. मैंने बताया था ना सब, है ना? So this is a very good introduction. Even when you're writing an essay, या even if you have to go in front of people and speak on something, आप उनको एक बहुत अच्छा statistic दे सकते हो. You can give them a very good number, or you can start off with a joke or with a story. I told you na how I was in class 6. When was the first time I had to go and speak in front of public? So that was a story. So you can start with a story, a statistic. आप joke से start कर सकते हो.
आप लोग कोई कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो. You know, there's a very famous quote by Mahatma Gandhi. He said once, I think Mahatma Gandhi tha, हाँ, he said, an eye for an eye will make the whole world blind. So if कोई मुझसे पूछता है what are my views on India Pakistan war या Israel Palestine war या कोई भी ऐसी warring countries का पूछता है, I always say an eye for an eye makes the whole world blind. That's a very good introduction. That is a good introduction even जब आप लोगों को essays लिखने हो, ठीक है? So a quote is a good introduction, humor is a good introduction, a story, a statistic और agree. तो ये सब अच्छे introductions हैं, ठीक है? And when it comes to closing, जो आपका conclusion part होता है, even in an essay, तो good conclusions can be summary, जिसमें आप summarize करो आपने किन किन points पे बोला है. एक quote से भी आप finish कर सकते हो. अच्छा, there's a very good closing part जो बहुत लोग public speaking में use करते हैं. That is known as call to action. Call to action. आप लोगों ने सुना है एक इंडियन टेलीविजन पे शो आता था जिसमें द एंकर यूज्ड टू से वी कैन एंड वी विल. बहुत पहले आता था, है ना? तो ये होते हैं कॉल टू एक्शन जहां आप लोगों को बोलते हो. अब जैसे आप ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, प्लाज्मा डोनेशन कैंप्स चल रहे हैं, तो उसमें लोग क्या बोलते हैं, आप ब्लड दीजिए और जान बचाइए. तो आप ऐसे भी एंड कर सकते हो जहां पे आप लोगों को किसी काम को करने के लिए एनकरेज कर रहे हो, ठीक है? तो जब आपको कंटेंट लिखना होता है ना, तो ये जो 3T का रूल मैंने आप लोगों को बताया ना, वे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोडक्शन है जिसमें यू टेल पीपल व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, तो आप उसमें अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे. अच्छा, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बताती हूँ. जब कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो, आप लोग जनरली क्या बोलते हो, माई सेल्फ. जैसे मुझे करना है तो बहुत लोग बोलेंगे माई सेल्फ अवनी कह लूं, है ना? आप लोगों को मैं आप लोग एक दूसरा इंट्रोडक्शन. जब भी आपने कभी किसी को इंट्रोड्यूस करना हो या अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, चाहे वो डिबेट हो, चाहे डेक्लेमेशन हो, चाहे पोएम रेसिटेशन हो, आप बोलो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, आई एम और अपना नाम. तो आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, या गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग गर्ल्स एंड गाइज, आई एम अवनी कैलू and today I will be teaching you the tips and tricks of public speaking. ठीक है? हमेशा I am बोलना, myself मत बोलना, ठीक है? Always you will say good morning everyone, I am और जो आपका नाम है, ठीक है? ये एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन होता है और ये हर जगह चलता है. चाहे आप विराट कोहली क्यों ना बन जाओ, चाहे आप नेहा कक्कड़ क्यों ना बन जाओ, ठीक है? ओके. अब मैं जो दूसरी जरूरी चीज आ रही है, दैट इज द डिलीवरी. मैंने आप लोगों को बताया था पब्लिक स्पीकिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, द कंटेंट एंड द डिलीवरी. आप लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे या जो आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते हो या जो आप लोगों के यूट्यूब चैनल पे देखते हो, कंटेंट तो वो हो गया जो उन्होंने बोलना था. डिलीवरी होता है वो कैसे बोल रहे हैं. अगर यही सेशन मुझे ऐसे लेना होता और मैं ऐसी शक्ल बना के बैठी होती तो आप लोगों को अच्छा लगता? नहीं ना. आप लोग कहते क्या बोरिंग है, कुछ ऐसे बिल्कुल भूत बन के बैठी हुई है ना? तो डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी जब हमें किसी से बात करनी हो तो आपके बात के साथ आप किस तरीके से बात कर रहे हो वो बहुत जरूरी होता है. जब आप बात करो तो आपका आईज कहाँ है, आप क्या उस जिस सामने वाले की आंखों में देख के बोल रहे हो. आपकी वॉइस जो है वो बहुत हाई तो नहीं है. अगर मुझे आप लोगों से बात करनी है और मैं ऐसे बोलूं हाँ तो ठीक है ना, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं सेशन, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कुछ भी. तो बहुत जरूरी है कि आपका जो वॉइस है वो एज पर ऑडियंस हो. तो सबसे पहली चीज आई कॉन्टैक्ट. इसको ना ट्रिपल थ्रेट कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में. ट्रिपल थ्रेट उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है आई कॉन्टैक्ट, कि आप जिससे बात करो उसकी आंखों में देख के बात करो. अब क्योंकि एक
हम लोग सब एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट में चले गए हैं, तो इसमें आंखें तो होती नहीं, मैं कैसे देखूंगी आप सबकी आंखों में, है ना? तो आप लोग जो अपने फोन का कैमरा होता है ना, आप उस पे देखो। मन तो करता है कि स्क्रीन पे अपने आप को देखो और बाल बाल थोड़े से ठीक कर लो, बट ये मत करना, आप लोग कैमरा में देखना। तो वो होता है आई कॉन्टैक्ट। सेकंड होता है आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आपकी आवाज कितनी ऊंची है, हाउ हाई पिच इज योर वॉइस, हाउ लो पिच इज योर वॉइस, व्हाट इज योर वॉल्यूम, व्हाट इज योर रेट ऑफ स्पीकिंग, आप जल्दी बोल रहे हैं या धीरे बोल रहे हैं, ठीक है? द थर्ड थिंग इज योर बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथ, आपका फेस का एक्सप्रेशन, क्या आप हंसते हुए बोल रहे हो, क्या आपकी सड़ी हुई शक्ल है, क्या आप गुस्से में बैठे हो, और आपके हाथ कैसे हैं। तो जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाओ, हमेशा ध्यान रखना कि आपके ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो फुली एक्सप्रेसिव हो। आपके हाथ से आप कोई बात करो। अब जैसे आप लोग देखो, मुझे अगर आपको बताना है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, मैं आप लोगों को हाथ के एक्सप्रेशन से दिखा रही हूँ, तो ये चीजें हमेशा। और जब किसी से बात करो ना, तो अपने बाजुएं क्रॉस करके मत बैठो। उसका मतलब ये होता है एज इफ आप मुझसे गुस्सा हो, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, ठीक है? तो क्या ध्यान रखना है, आपके आईज जो है वो कैमरा को देख रहे हैं, और अगर एक रियल एनवायरनमेंट में बैठे हो तो यू शुड मेक आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। अब बहुत लोग डरते हैं कि मैं आई कॉन्टैक्ट कैसे बनाऊं, मुझे डर लगता है, तो आप ना यहाँ देख लिया करो, ये जो नाक का ब्रिज होता है ना, इस पे, इससे ना समझ नहीं आता कि आप आंखों में देख रहे हो या कहाँ, तो आपको डर भी नहीं लगेगा। सो यू लुक समवेयर हियर। तो इससे ये एक अच्छा पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ सोशल गेज। तो अगर आप आई कॉन्टैक्ट बना सकते हो, नथिंग बेटर, नहीं तो आप ब्रिज ऑफ द नोज पे देखो। सेकेंडली, अपनी आवाज को एज पर द नंबर ऑफ पीपल यू आर टॉकिंग टू, एज पर द प्लेस वेयर इन यू आर टॉकिंग टू, एज पर द टॉपिक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, उस हिसाब से आप अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करेंगे। उसका वॉल्यूम, उसका रेट ऑफ स्पीच, उसका पिच, ठीक है? आप नेहा कक्कड़ के गाने सुनते हो तो आपने कभी उसको देखा है एक ही सुर में वो गाती रहे? नहीं ना। कभी वो हाई आवाज में गा रही होती है, कभी वो धीमी आवाज में गाती है। तो उस तरीके से एक पब्लिक स्पीकर को भी अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करनी पड़ती है। द थर्ड थिंग जो मैंने आप लोगों को सिखाई वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। हमेशा अपना बॉडी ना खुला रखो, कभी उसे ऐसे करके मत बोलो, लोगों को समझ नहीं आएगा कि आप डर रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो। तो आप अपने हैंड एक्सप्रेशन रखो। अच्छा, किसी को कभी पॉइंट मत करो, हमेशा पूरा हाथ दिखाओ। आप जितना हाथ दिखाओगे ना, लोग आपको उतना पसंद करेंगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। जितना द मोर ओपन योर हैंड्स आर, द मोर पीपल विल लाइक यू फॉर इट। ओके, तो डिलीवरी में यही 3 चीजें होती हैं जो सबसे जरूरी होती है। अब मुझे एक चीज बताओ, नर्वसनेस होती है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आता है, जब आप कभी नर्वस होते हो ना, तो लोग बोलेंगे यार बी योरसेल्फ। लोग बोलते हैं बी योरसेल्फ। बाबा, अब आप मुझे सडनली भेज दोगे स्टेज पे और बोलोगे बी योरसेल्फ, और मेरा योरसेल्फ में सबसे पहले रिएक्शन है कि मैं डर के बैठ जाऊं, तो मैं स्टेज पे थोड़ी डर के बैठ जाऊंगी, है ना? तो आप ना आगे से अपने आप को एक बात बोलना शुरू करो। अगर आप बी योरसेल्फ हो गए ना, तब तो आप डर के बैठ जाओगे। रादर आप स्टार्ट सेइंग स्टॉप एक्टिंग स्कैर्ड। आपका जो माइंड है ना, वो डरना बंद हो जाएगा। एक तरीका तो ये है नर्वसनेस कम करने का, बिफोर एनी डांस परफॉर्मेंस, एनी सिंगिंग, एनी पब्लिक स्पीकिंग, एनीथिंग, आप अपने दिमाग को बोलो ब्रेन स्टॉप एक्टिंग स्कैर्ड, डरो मत, ठीक है? दूसरी चीज, ये वाला जो पॉइंट है, ये ना मैंने आपकी प्रिंसिपल मैम से सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बताया। उन्होंने बताया वो स्टूडेंट्स को बोलती हैं, जब आपको नर्वसनेस हो रही है ना, आप सोचो आप अपने साथ में पेन लेकर जाओ और उस पेन को रख दो कमरे में जहां आपको वो दिख रहा है, और आप ना अपनी सारी नर्वस एनर्जी उस पेन पे डाल दो। ये जो पेन है ना, मैं इसको बोल रही हूँ सारी, मतलब जो मेरे दिमाग में नर्वसनेस है, मैं सब इस पेन के ऊपर फेंक रही हूँ।
और इस पेन को हटा दो। ये बहुत हेल्प करता है। आप लोगों को लगेगा हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years in the speaking profession and I have done it so many times. ये थर्ड चीज जो है वो है, जब भी आपका कोई असाइनमेंट होता है ना, डांसिंग, सिंगिंग, क्रिकेट, पढ़ाई का या पब्लिक स्पीकिंग का, यू कैन डू वन थिंग। इसको ना, आप लोगों ने कभी सुपरमैन मूवी देखी है? हाँ, yes. Yes, miss. वंडर वुमन Yes, है ना? miss. वंडर वुमन देखी है? वंडर वुमन मूवी Yes, जो miss. मार्वल है ना? Yes, आप miss. लोग उसके पोस्टर पे देखते हो, वो जो हीरो और हीरोइन वो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे कमर पे ऐसे हाथ रख के, ऐसे करके खड़े होते है ना? इसको ना वी कॉल इट द पावर पोज। आप जैसे ही ऐसे करके खड़े होते हो ना, और चिन ऊपर करके आप ना एक कॉन्फिडेंट स्टेट में खड़े हो जाते हो। इसको कहते हैं पावर पोजिंग। सो बिफोर एनी असाइनमेंट दैट यू हैव, और कल को लाइफ में आप जब बड़े होगे, यू विल हैव योर इंटरव्यूज, यू विल गो फॉर जॉब, आपको बहुत ऐसे चांसेस होंगे जब आप बहुत नर्वस हो रहे होगे। ऑलवेज डू, आप क्या करो, एक बाथरूम में जाओ, वहां शीशा देखो और शीशे के सामने ऐसे करके खड़े हो जाओ एंड टेल योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। अब बोलो अपने आप को, हो जाएगा, डर मत। ये भी पावर पोज है और ये भी। आप अपने हाथ, आप लोगों ने देखा है वन थिंग, जब कोई इंडिया जब क्रिकेट मैच जीतता है, या जब कोई इंडियन आइडल में सिंगर जीता है, या डांस इंडिया डांस में कोई डांसर जीता है, या इवन ओलंपिक्स में जब लोग अपनी रेस करके फिनिश लाइन को जब क्रॉस करते हैं, उनके हाथ ऐसे होते हैं हवा में, देखा, ऐसे पूरे हवा में हाथ होते हैं उनके। सो दैट इज ऑल्सो पावर पोज। सो बिफोर गोइंग फॉर एनी असाइनमेंट, आप लोग या तो ऐसे करके खड़े हो जाओ शीशे के सामने एंड टेल योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। कुछ नहीं होता, हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या तो फिर हाथ ऊपर करके कर लो, ठीक है? ये पावर पोज है, ट्रस्ट मी, दे आर सो हेल्पफुल। आप ये सोचो, अगर मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस हो और मैं अभी तक यूज करती हूँ, तो कुछ तो बात होगी। मैंने इनफैक्ट में इतनी डरी हुई थी कि आप लोग, पता नहीं आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगेगा या नहीं, मैंने अभी शीशे के सामने खड़े होके करा है कि कुछ नहीं होता, हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ मैं सीख लूंगी, कुछ आप सीख लोगे, ठीक है? सो कंटेंट और डिलीवरी दोनों चीजें बहुत जरूरी होती है व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये हमेशा, यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग। जो वल्नरेबिलिटी है ना, वल्नरेबिलिटी क्या हुआ? लोगों को दिखाना कि आप डरे हुए हो। हमारे साथ होता है, कभी स्टेज पे खड़े हो तो हमारे हाथ कांप रहे होंगे और हमें डर लगेगा कि यार लोगों ने देख लिया तो वो क्या कहेंगे। और मैंने आपको क्या बताया, लोग हमेशा चाहते हैं कि आप सक्सीड करो। दे आर नेवर बैड लिसनर्स। तो वल्नरेबिलिटी हमेशा, इट इज ओके। कभी अगर कुछ बात करते हुए आप डर रहे हो, आप रुक रहे हो, आपका माइंड ब्लैंक हो रहा है, इट इज ओके। हर किसी के साथ होता है। और लोग एक ऐसे ही इंसान की बात सुनना चाहते हैं जिसके साथ दे कैन कनेक्ट। इफ आई डू नॉट मेक मिस्टेक, इफ आई एम परफेक्ट, यू वुड बी इंटिमिडेटेड बाय मी। आप लोग मुझसे डरना शुरू हो जाओगे, यार ये मैम तो इतनी परफेक्ट है, इनके सामने हम कैसे बोले, है ना? तो इसलिए शो योर वल्नरेबिलिटी। अगर भूल जाएगा तो व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? सबसे बुरा क्या होगा? अगर आपको किसी स्पीच में या किसी डांस में कोई स्टेप भूल गए, अगर सिंगिंग करते करते कोई लिरिक भूल गए, तो व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? क्या होएगा सबसे बुरा? नर्वसनेस हो जाएगी, वो 30 सेकेंड में चली जाएगी। नहीं होगा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप जब ये मेरे साथ ये मेंटालिटी काम करती थी इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड। मैं सोचती थी यार व्हाट इफ आई बॉम्ब टुडे, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन। और द मोमेंट मेरा माइंड उसको प्रिपेयर हो गया कि यार सबसे बुरा क्या है कि ये मुझसे दूसरी बार बात नहीं करेंगे, ठीक है कोई और कर लेगा। तो अपनी नर्वसनेस को ना होने दो, इट इज ओके, बी वल्नरेबल। इफ यू डोंट मेक मिस्टेक्स, हाउ विल यू लर्न? एक बार व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, आई मेड द मिस्टेक ऑफ रट्टा। वो रट्टा मारते हैं ना, मैंने पूरे अपने टॉपिक्स को रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया। आई मेड दैट मिस्टेक एंड वहां पे जाके क्या हुआ, मैं ऐसे तोते की तरह टिक 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 बोलती रही।
That was a mistake. I made a mistake. I learned from it. So it is okay to be vulnerable. गलतियां करना is absolutely normal. आप गलती करो, आप सीखोगे. और जो लास्ट चीज है वो ये है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, पब्लिक स्पीकिंग इज अ लर्नेबल स्किल. वो आप सीख सकते हो. जैसे आप लोगों को बताऊं, व्हेन इफ यू लर्न सिंगिंग एंड डांसिंग प्रोफेशनली, उसमें भी क्लासेस होती हैं. क्लास 12 ग्रेजुएशन सिंगिंग एंड डांसिंग में भी होती है. पब्लिक स्पीकिंग भी आप वैसे ही ग्रेजुअली सीख सकते हो. इट इज जस्ट दैट आपको माइंडसेट होना चाहिए सीखने का. यू कैन लर्न इट. इट इज अ लर्नेबल स्किल. तो अगर वो लर्नेबल है, अगर जैसे स्विमिंग इज अ लर्नेबल स्किल, पब्लिक स्पीकिंग इज अ लर्नेबल स्किल. द ओनली थिंग इज आप उसका इतना प्रैक्टिस करो दैट इट बिकम्स अ हैबिट. तो हम लोग इसको बोलते हैं यू रिहर्स योर स्पीच टू हैप्पी बर्थडे लेवल कॉन्फिडेंस. अगर आज मैं आप लोगों को बोलूं मेरा बर्थडे है, तो आप सब लोग मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाओगे? आप लोगों को हैप्पी बर्थडे सॉन्ग लर्न तो नहीं करना पड़ता ना, वो ऑटोमेटिकली आता रहता है. वर्ड्स ऑटोमेटिकली फ्लो करते रहते हैं, है ना. तो आप लोगों का जो भी टॉपिक है जिस पे बोलना है, आप उसको इतना रिहर्स करो. मैं रट्टा मारने को नहीं बोल रही हूँ. रिहर्स करो, दिन में 3 बार करो, 4 बार करो, 5-6 दिन कंटिन्यूसली करते रहो. तो वो आपको ना बिल्कुल हैप्पी बर्थडे लेवल की तरह कंफर्टेबली फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा. तो पब्लिक स्पीकिंग कोई डरने वाली चीज नहीं है, ओनली इफ यू नो द टिप्स एंड ट्रिक्स बिहाइंड इट. तो आज हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या सीखी, वो ये थी पब्लिक स्पीकिंग के 2 पार्ट्स हैं, कंटेंट और डिलीवरी. कंटेंट में रिसर्च करो, गूगल से करो, कोरा से देखो. आपको पता है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेजेस हैं जिनमें नॉलेज शेयरिंग होता है. वो वाले पेजेस ढूंढो, उससे अपनी रिसर्च करो. तो रिसर्च करो, उसको आउटलाइन बनाओ. आउटलाइन कैसे बनानी है, हमने 3 T's करे थे. सबसे पहले यू टेल पीपल व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, देन यू टेल देम, एंड लास्ट में यू रिकैप. तो यू टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम, जैसे जो मैं आप लोगों के साथ अभी रिकैप कर रही हूँ. ठीक है, जिसको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन कहते हैं. एंड देन द सेकंड पार्ट वाज द डिलीवरी, जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया ट्रिपल थ्रेट, आई कॉन्टैक्ट, योर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड योर बॉडी पॉस्चर, जो हमेशा ओपन रहना चाहिए. ठीक है. एंड जो दूसरी चीज मैंने जरूरी सिखाई वो ये थी कि इट इज ओके टू बी नर्वस. हम लोग सब नर्वस होते हैं, हम लोग सब गलतियां करते हैं. कभी इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. ऑलरेडी जो कोविड में हम लोग घर में बैठे हैं, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. तो कभी ऐसे नहीं होगा कि आप लोगों को स्पीच भूल जाए और धरती फट जाए और आप लोग अंदर चले जाओ. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, आप लोग फिर भी यही रहोगे. आप लोगों को और चांसेस मिलेंगे to go on stage and speak what you want to speak. ठीक है. So never ever be afraid of being vulnerable. And last चीज एक ही बोलूंगी, वो ये है, whatever you do in life, be it public speaking, be it dancing, singing or anything, just be passionate. And इतना passionate हो उस चीज के बारे में so that it becomes contagious. वो जो आपका पैशन है ना, दैट शुड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर ऑडियंस. ओके, एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट? तो पे सबने पूछा व्हाट इज योर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब आईडी. मैं आप लोगों को उससे पहले एक और चीज बताऊंगी, वो है थोड़ी बहुत मेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई. आपकी मैम ने बताया, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर से पढ़ी हुई हूँ. मैं उधमपुर में ही रहती हूँ. मैं अभी काम की वजह से आई स्टे इन गुड़गांव. एंड उधमपुर के बाद आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब. एंड जब मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन गुड़गांव. एंड मैंने गुड़गांव में पहले विप्रो के साथ काम किया है, एंड देन आई जॉइन बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. दोनों में आई वर्क एज अ कंसल्टेंट फॉर 6-7 years. उसके बाद मुझे लगा दैट यू नो आई शुड टॉक मोर. मुझे बातें करने का बहुत शौक था. मुझे लगा आई शुड टॉक इवन मोर. एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कम्युनिकेशन कोच एंड एन इमेज कंसल्टेंट, जहाँ मैं लोगों को बताती हूँ हाउ टू बी गुड इन द कम्युनिकेशन एंड हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वे कि लोग आपको अट्रैक्टिव समझे. सो आई हेल्प पीपल विद द ड्रेसिंग,
I help people with their dressing, their appearance, their makeup, their communication, be it ladies or be it gents. तो ये सब मैं काम करती हूँ. तो आप इमेजिन करो अगर मैं जो 6th क्लास में ब्लैंक हो गई थी स्टेज के ऊपर बोलते बोलते, अगर मैं ये सब कर सकती हूँ तो आप लोग तो बहुत अच्छा करोगे. So you can do anything you want to do. And I think मुझसे चैट में किसी ने पूछा है, ओके मैम पंजाब में मैंने इंजीनियरिंग कहाँ से करी? मैंने पंजाब में इंजीनियरिंग चंडीगढ़ के पास एक रोपड़ जगह है वहां से करी. तो कोई और क्वेश्चन? एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? थैंक यू सो मच अवनी. आई जस्ट वांटेड वन थिंग कि जैसे आजकल बच्चे हैं दे डोंट हैव अ रीडिंग हैबिट. तो जैसे कि मैं आपकी जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रही थी. यू हैव रेफर्ड टू मैनी बुक्स. इट माइट बी दैट यू वर अ वेरी गुड रीडर एंड आप बहुत बुक्स पढ़ते थे. मैंने आपके साथ ही पढ़ी हूँ, बचपन से मैंने देखा है आपको. तो लाइक आई जस्ट वांटेड कि आप थोड़ा सा बच्चों को बताओ कि बुक्स इनको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए एंड बुक्स पढ़ने का क्या मतलब होता है, हाउ इट हेल्प्स. ओके, थैंक यू सो मच अनुकंपा. एंड मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो बुक्स पढ़ने से क्या होता है. आई टोल्ड यू वन थिंग, व्हेन एवर यू वांट टू स्पीक अबाउट समथिंग, आपको सबसे पहले कंटेंट बनाना होता है. कंटेंट के लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है. तो जब आप बुक्स पढ़ते हो ना, यू गेट दैट कंटेंट. मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, आई थिंक आई हैव रेड मोर देन अराउंड 100 बुक्स. एंड जब आप बुक्स पढ़ते रहते हो आपको आइडियाज आते हैं. Firstly, आपको कंटेंट मिलता है, so that is a good way of researching. Secondly, when you read books, your language skills become better. A lot of people cannot speak in public because उनका language weak होता है. They are probably weak in English language और Hindi language. उनको language को उतना control नहीं होता है. When you read books, तो आपको content भी मिलता है, आपका language better होता है. And the third thing is, you develop a better way of thinking. आपको समझ में आता है लोग क्या समझ रहे हैं, लोगों का क्या थिंकिंग है, तो you broaden your horizon. So that is a very good thing to do. And when I ask people to read books, कोई जरूरी नहीं है आप मोटे मोटे इतने ग्रंथ पढ़ो, because I understand you already have a lot to study about and a lot of books to already read. आप पतले बुक्स उठाओ, you start reading with them, and it doesn't matter if you're reading fiction or non-fiction. You read whatever comes your way. I used to read magazines, newspapers, phone articles. So a reading habit develop करना is very important. आप देखो शाहरुख खान, he is so successful and he is an avid reader. आपकी अपनी principal ma'am is an avid reader. तो आप ये सोचो, आप आगे पीछे जितने भी सक्सेसफुल लोग देखोगे, दे आर बिग टाइम रीडर्स. आप लोगों को जो मन करता है पढ़ने का, इवन आपको कोई स्टोरी बुक अच्छी लगती है, टिंकल डाइजेस्ट, आई रिमेम्बर हम लोगों के छोटे होते टिंकल डाइजेस्ट आती थी. आई यूज्ड टू रीड टिंकल डाइजेस्ट ऑल्सो. आप लोगों को अगर स्टार्ट करना विद आर्टिकल्स, एक मैगजीन आती है रीडर्स डाइजेस्ट, इतना छोटा सा पतला सा मैगजीन होता है. यू स्टार्ट रीडिंग दैट. तो रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट टेल्स यू, एक तो आपका इमेजिनेशन बेटर होएगा एंड इट विल टेल यू आपका लैंग्वेज स्किल किस लेवल पे है. एंड द सेकंड थिंग इट टेल्स यू कि एक दुनिया है, आपके उधमपुर के सेटअप के बाहर भी एक दुनिया है जिसमें लोग बहुत अलग चीजें कर रहे हैं. द मोर यू रीड, द मोर योर एवेन्यूज विल ओपन अप इन लाइफ. तो इसलिए रीडिंग हैबिट जरूर डेवलप करो. आई यूज टू रीड अ लॉट, आई स्टिल रीड अ लॉट. मैं तो आई हैव केप्ट अ किंडल ऑल्सो जिसपे मैं रीड करती हूँ, मैं अपने फोन पे रीड करती हूँ, मैं फिजिकल बुक्स भी रीड करती हूँ. सो रीड अ लॉट. जितना पढ़ोगे उतना बेटर होएगा आपके लिए, उतने बेटर पब्लिक स्पीकर बनोगे, उतने बेटर ह्यूमन बीइंग बनोगे. एनी अदर क्वेश्चन? Thank you, ma'am. Don't settle for average. Bring your best to the moment. Then whether it fails or succeeds, at least you know that you gave all you had. I, Shruti, on behalf of everyone, want to thank you a lot, ma'am, for such an enlightening session. It was a magnificent session. We all enjoyed it very much, and thanks for sparing your time for such a fruitful session. The things you have highlighted were definitely fascinating and enchanting. After hearing experiences of your journey,
hopefully we can avoid some of the potholes of ours. Once again, on behalf of entire National Academy, thanks a lot, ma'am. Thank you so much, Shruti. The pleasure is all mine. And मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बच्चे मुझे रीच आउट करोगे, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे एंड आप में से कोई और मेरे साथ खड़ा होगा एज अ पब्लिक स्पीकर. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. I will leave you with certain things. अगर if anybody is more interested in pursuing their journey as a public speaker या किसी को जनरली अपने स्पीकिंग स्किल्स बेटर करने हैं, तो आप लोग YouTube पे टेड टॉक्स होता है, मैं आप लोगों को चैट विंडो में लिख दूंगी. टेड टॉक्स देखा करो, जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, जो नहीं समझ में आ रहा है उसे छोड़ दो. सेकेंड थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन होती है टोस्ट मास्टर्स. मैं आप लोगों को अगेन चैट विंडो पे लिख दूंगी, आप लोग उनकी जर्नी फॉलो कर सकते हो. दे पोस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू बी अ बेटर पब्लिक स्पीकर. एंड स्टार्ट रीडिंग बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, रीडिंग क्लब्स ज्वाइन करो जहाँ पे यू कैन रीड एंड एक्सचेंज योर थॉट्स. आप लोग कोई भी एक छोटा सा बुक या आर्टिकल रख सकते हो एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. वो आप लोग रख लो कि अच्छा एक आर्टिकल यू हैव टू रीड एंड शेयर योर थॉट्स बिहाइंड इट. So that will help you with your speaking journey. Any other question you can ask me and we can connect on my social media. Thank you so much everyone and have a great weekend and stay healthy. चलो. Thank you.